चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, रोजगार उत्पन्न करना और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। What is the government doing to remove poverty and create employment opportunities for its citizens? निर्धनता दूर करने और अपने नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार क्या कर रही है? In order to tackle these serious problems, the Indian government has been making policies and spending a lot of money since the time of independence. इन गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए भारत की सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नीतियां बनाती रही है और बहुत सी धनराशि खर्च करती रही है. That is why population below poverty line has been reducing over time, though slowly. Similarly, unemployment rate has not been allowed to rise beyond control. These were possible due to the following programs implemented by the government. यही कारण है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या समय के साथ घट रही है, भले ही धीमी गति से. इसी प्रकार बेरोजगारी की दर को नियंत्रण से बाहर बढ़ने नहीं दिया गया है. यह सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रम लागू करने के कारण संभव हो पाया है. अब आइए देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम है जो सरकार लाए थे. क्या करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, मतलब नौकरी देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए. सबसे पहला, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा. महात्मा गांधी नेशनल रूरल Employment Guarantee Scheme aims at providing least 100 days of guaranteed wage employment in a year to rural population. The nature of work is unskilled manual work. The scheme was launched in 2006 in 200 districts of India. Then it was notified that the entire country in 2008. Any adult member of a family living in rural area can do manual labor on daily wage basis for 100 days in a year. In 2010 up to the month of December, about 4.1 crores households were benefited under this scheme. In 2010-2011, the government had allocated rupees 40,100 crore to run this scheme. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का वेतन रोजगार गारंटी के साथ उपलब्ध कराना है. मतलब जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको साल में कम से कम 100 दिन तो काम देना ही है. कार्य अकुशल शारीरिक कार्य की प्रकृति का है. कहने का मतलब आपको कोई स्किल्स का जरूरत नहीं है इसके लिए. यह योजना वर्ष 2006 में भारत के 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी. फिर वर्ष 2008 में इसकी घोषणा पूरे देश के लिए की गई. किसी परिवार का कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क सदस्य, वयस्क मतलब अडल्ट, एक वर्ष में 100 दिन का शारीरिक कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कर सकता है. वर्ष 2010 में दिसंबर के महीने तक लगभग 4.1 करोड़ परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा चुके थे. वर्ष 2010-2011 में सरकार ने इस योजना को चलाने के लिए 40,100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी. नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in April 1999. The aim of this program is to help the rural poor to increase their income generating capacity through self-employment. The primary focus of this scheme is the SC and ST population, scheduled caste, scheduled tribe, as well as women. But
Others can also get benefit. Under this scheme, poor people are given training, bank loans and other facilities so that they can build up their capabilities to overcome poverty. People who work on their own are called self-employed or swarojgaris. This scheme is especially meant for those swarojgaris. In order to give training to people belonging to poor households, government has set up Rural Self-Employment Training Institute RSETI, Rural Self-Employment Training Institute, in each district under this scheme. About 77,000 rural youths have got training from RSETI, Rural Self-Employment Training Institute, by December 2010. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, यह योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब लोगों की स्वरोजगार के माध्यम से आय सृजन करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है। इस योजना का प्राथमिक केंद्र बिंदु अनुसूचित जाति और जनजाति तथा स्त्रियां हैं, किंतु अन्य भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को प्रशिक्षण, बैंक से ऋण मतलब लोन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कि वे निर्धनता को दूर करने की अपनी क्षमता का निर्माण कर सकें। व्यक्ति जो अपना स्वयं का कार्य करता है उसे स्वनियोजित या स्वरोजगारी कहते हैं। यह योजना मुख्य रूप से इन स्वरोजगारियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने हर जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। लगभग 77,000 ग्रामीण युवक इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2010 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY. Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana is meant for providing employment to poor families living in urban areas of the country. It was first launched in 1997. Then many new initiatives were introduced in 2009, which include the following. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना सर्वप्रथम सन 1997 में प्रारंभ की गई। इसके बाद सन 2009 में बहुत से नए प्रयास आरंभ किए गए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, प्रोग्राम्स टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार सृजन करने के कार्यक्रम। दूसरा, प्रोग्राम्स फॉर अर्बन वुमेन, ग्रामीण स्त्रियों के लिए कार्यक्रम। तीसरा, ट्रेनिंग फॉर अर्बन पुअर, शहरी निर्धनों के लिए प्रशिक्षण। फोर्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 5, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेतन रोजगार कार्यक्रम। The government has allocated about 590 crores for Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana SJSRY for the year 2010-2011. A total of more than 6,50,000 families in urban areas have been benefited under this scheme by 2010. सरकार ने वर्ष 2010-2011 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए 590 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2010 तक कुल 6,50,000 से अधिक परिवार लाभ उठा चुके हैं।